Assalamualaikum class, my name is Soha. Hope you are well and doing great. The video on this topic contains instruction and educational content that is both shareable and easy to retain. So let's start. My presentation topic is reproduction and development. First we discuss about asexual reproduction in invertebrates. Asexual reproduction produces only a single parental organism which gives rise to offspring by the phenomena of mitotic cell division. It mostly occurs in plant, bacteria, protists or invertebrates. You can see in the diagram. Asexual reproduction produced by only one parent and offsprings are identical to their parent. Then the types of asexual reproduction: budding, fission, regeneration, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. First we study about budding. Budding is a type of asexual reproduction in which organisms develop from an outgrowth or bud due to cell division. Example: budding in yeast or budding in hydra. Then fission. Fission is the phenomena in which the separation of body into two new bodies, each organism develop into new individual. Organism duplicates its DNA. You can see in the diagram, parent amoeba divided and the elongation of nucleus occur. Nucleus and cytoplasm divided and two daughter cells produce. And each daughter cells produce and develop into new individual. Then regeneration. Regeneration is a natural process in which any damaged or missing part of an organism replaced or restored. It especially occurs in sponges and tunicates and flatworm. You can see in the sponges diagram. Then fragmentation. Fragmentation is the type an organism is split into many fragments. Each split organism develop into mature developed organism and each organism genetically identical to its parent. You can see in the fragmentation in planaria. Then spore formation. It mostly occurs in plants. Spore formation, the parent plant produce many spores of reproduction unit which is called spore. When spores burst, these spores travel into air or land and they germinate and produce new plant. स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के अंदर दिखाई गई है. स्पोरेंजिया एंड देन डिस्पर्सिंग होती है स्पोर्स की और वो ब्रस्ट आउट हो जाते हैं. एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट एडवांटेज है कि सिर्फ एक पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए उसकी ज़रूरत होती है. डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी पेरेंट के अंदर अगर कोई डिजीज़ है तो ये डेफिनेटली बात है कि उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वो डिजीज़ होगी. और एडवांटेज है ये क्विक रिप्रोडक्शन करता है. एंड डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर लिटिल वेरिएशन होती है. एडवांटेज है कि सेव एनर्जी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती रहती हैं. इसके बाद लास्ट एडवांटेज है कि ये शॉर्टर टाइम में रैपिड क्लोनाइजेशन कर सकते हैं. और डिसएडवांटेज है कि ओवर क्राउडिंग और कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स. ऑल वर्टिब्रेट्स हैव वर्टिबल कॉलम, सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट और ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर. डायग्राम में मैमल, रिप्टाइल, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियन दिखाए गए हैं जो कि वर्टिब्रेट हैं. उसके बाद इनकी स्ट्रेटजीज सिमिलर होती हैं इन वर्टिब्रेट्स से. दीज सेल्स आर हेप्लॉइड एंड प्रोड्यूस बाय मियोसिस. एग जो होता है ये लार्जर होता है स्पर्म से और नॉन मोटाइल होता है. गिमिट्स जो हैं ये गोनेट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टेस्टिस कहते हैं और फीमेल को एग. एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जेनेटिक वैरायटी को इंक्रीज़ कर और अगर टेम्परेचर या इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट भी कर रहा है तो इसकी बेटर अडेप्टेशन ही होगी. मोर एफिशिएंट होता है सिलेक्शन में, स्पीड अप करता है एवोल्यूशन को और डिजीज़ जो है ये लेस लाइकली इफेक्ट होती है किसी भी इंडिविजुअल में. उसके बाद डिसएडवांटेज हैं, लेस देन 50% पॉपुलेशन जो होती है वो कैपेबल होती है गेस्टेशन में. रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रांटेड नहीं होती और किसी भी अदर मेट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है. आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है इन ऑफस्प्रिंग की बॉडी को भी और उसके अंदर चेंजिंग आ सकती हैं. उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस कहते हैं और फीमेल को ओवरीज. मेल गिमिट्स आर कॉल्ड स्पर्म और फीमेल गिमिट्स आर एग. देन एग एंड स्पर्म मीट. फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से एक न्यू एम्ब्रियो जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स. उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज होती है. फर्स्ट हम बात करेंगे ओवीपेरस की. ओवीपेरस ऐसे एनिमल जो होते हैं जो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड जो है एग्स ले करते हैं और एक पीरियड के बाद
इंक्यूबेशन होती है और यंग्स वन जो है वो हैच कर देता है एक मिच्योर बॉडी में। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियन। विवीपेरस दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड द फर्टिलाइज डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसकी एग्जांपल है लाइन, ह्यूमन, कैट एंड डॉग। उसके बाद ओवोविविपेरस में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप इन द बॉडी ऑफ फीमेल बट दे डिपेंड ऑन द योक सैक ऑफ देयर एग। इसकी एग्जांपल है स्नेक एंड लिजर्ड्स। उसके बाद हमारे पास स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेटिंग है, ये ह्यूमन इंटरकोर्स के अंदर आपको पता है गेमेट्स जो हैं वो एट द सेम टाइम और एट द सेम प्लेस आते हैं और इंटरकोर्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है यूनियन ऑफ स्पर्म और एग की। टाइप्स होती हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट होते हैं और एम्ब्रियो डेवलप करता है विद इन द बॉडी एंड नरिश इनसाइड द बॉडी। इसको रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फीवर ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन दिस टाइप मैनी एग्स आर प्रोड्यूस इन वाटर और लैंड। और एक्सटर्नल का मतलब कि आउटसाइड होती है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। Then pollination. Pollination is the process in which transfer of pollen grain from the male anther to female stigma, and you can see in the diagram. And then male reproductive system. Male reproductive system is a part of male reproductive organ which consists of sex organ and produce, release or store the sperm in this organ. External genital organ और internal genital organ. External genital organ होते हैं penis और scrotum. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपको डायग्राम भी दिखा दी यहाँ पर। उसके बाद पेनिस है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है विच अस रीचिंग आउट इट फुल साइज एंड ड्यूरिंग इट्स प्यूबर्टी एंड पेनिस इंपॉर्टेंट टू प्ले सेक्शुअल फंक्शन और एक्ट एज वेल टू लीव यूरिन फ्रॉम द बॉडी। Then scrotum is a sac of skin which is hang from the body outside between the legs. Scrotum contain testicles. Then internal genital organ, टेस्टिस हैं, एपिडिडर्मिस है, वास डिफरेंस है। फर्स्ट वी स्टडी टेस्टिस जो होते हैं ये ओवल शेप्ड होते हैं स्ट्रक्चर एंड 2 इन नंबर विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ट्यूब्स होती हैं अगेंस्ट द टेस्टिकल जो कि स्पर्म की स्टोरेज के लिए होती हैं। उसके बाद वास डिफरेंस होती हैं, ये वेरी थिन ट्यूब होती हैं, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टार्ट होती हैं एपिडेर्मिस से और यूरिथ्रा तक जाती हैं। उसके बाद सेमिनल वेजिकल, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वन साइड ऑफ द ब्लेडर वास डिफरेंस के साथ अटैच्ड होता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट होता है टू मेक अ सीमन क्या है, ये लिक्विड मिक्सचर होता है स्पर्म सेल्स का। देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये स्मॉल इन साइज ग्लैंड होता है विच आर प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट और हार्मोनल कंट्रोल, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म डेवलप टू बिकम मैच्योर स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो ईच डे में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। स्ट्रक्चर इसका 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। हेड इज कंटेन एक्रोसोम और नेक एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम क्या होता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर वो साइड्स जो हैं पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो हैं वो फिल्ड हुए होते हैं। टेल है, टेल का जो पोर्शन होता है ये लॉन्ग होता है और डिवाइडेड होता है 3 पोर्शंस में, नेक मिडल पीस में, प्रिंसिपल पीस एंड देन एंड पीस में। ये तीनों टेल के हैं। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की आपको डायग्राम दिखाई गई है। एंड देन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं, ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को डेवलप करते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल में और प्रोड्यूस होते हैं योक सेल में। उसके बाद सर्टुलाइज सेल्स होते हैं, ये स्पोर्ट सेल्स भी इनको कहते हैं, ये नरिश करते हैं स्पर्मेटोसाइट्स की, स्पर्म्स की एंड स्पर्मेटिड्स की। और ल्यूमन के अंदर और फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कि स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट करता है, सिक्रीट करता है, इनहिबिन को रेगुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन को। सारा फिनोमेना है स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल है। हार्मोनल कंट्रोल जो है ये प्यूबर्टी के टाइम पर होता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो ये इंक्रीज़ हो जाता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो इंक्रीज़ करे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। फिर ये दोनों जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन और सर्टुलाइज सेल्स पर डायरेक्ट एक्ट करते हैं और इनहिबिन को सर्टुलाइज सेल्स इंक्रीज़ करता है इनहिबिन को और विच इनहिबिट FSH। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, प्रोड्यूस एग, प्रोड्यूस न्यू बेबी प्रोडक्ट और स्पोर्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो। मेजर ऑर्गन है सर्विक्स, वेजाइना, सर्विकल नाल्स, ओवरीज, यूट्राइन एंड यूट्राइन ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, ये लोअर पोर्शन होता है, नेक ऑफ द यूट्रस भी इसे कहते हैं और ये म्यूकस से लाइंड हुआ होता है और
एट द बर्थ ऑफ द एम्ब्रियो सर्विक्स जो है वो क्या कहते हैं पैसेज के तौर पर काम करता है और बेबी को मूव करता है यूट्रस से वेजाइना की तरफ। सर्विकल किनाल होती हैं ये 500 टाइम एक्सपैंड करती हैं ये अपनी ओरिजिनल विड्थ से, और वेजाइना जो है ये बर्थ के टाइम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके बाद ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब, ओवरीज कॉल्ड फीमेल गोनेड्स, और ये प्रोड्यूस करती हैं एग को। दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यूट्राइन ट्यूब के होते हैं ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर होती हैं और ये पियर शेप्ड होती हैं। यूट्रस जो है ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान एक्सपैंड कर जाती है। देन वी स्टडी folliculogenesis. Folliculogenesis, menstruation, developing follicle, mature follicle evolution, corpus luteum, deteriorations of corpus luteum. Then we study about the hormonal function. Hormonal function play important role in releasing of hormonal function, gonadotrophic hormone, FSH or LH, and estrogen and progesterone production. My next topic is parental development and its event. 3 इवेंट होते हैं, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फीटल स्टेज। आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। इसके अंदर अनमेच्योर एम्ब्रियो होता है 2 वीक्स तक। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, ये 3 से लेके 8 वीक तक होता है, और फीटल के अंदर बेबी जो है वो बिल्कुल मेच्योर हो जाता है एंड देन उसकी बर्थ हो जाती है। देन प्लेसेंटा जो होता है ये टेम्परेरी ऑर्गन होता है विच इज़ ओनली प्रोड्यूस इन द प्रेगनेंसी प्रोसेस एंड विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो है ये भी प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देन बर्थ इज नोन एज लेबर और डिलीवरी। इन दिस प्रोसेस बेबी लीव्स द यूट्रस बाय थ्रू वेजाइना। And my last topic of this presentation is milk production and lactation. Lactation of the milk from the mammary gland of female during the birth of the embryo. Mother lactate to feed the child. In the human, the process is called nursing or feeding. If you have any kind of problem, you can share with me. Thank you.